Welcome students, myself Praveen Mishra. I am Head Mechanical Engineering Department, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's video topic is water pumps. In this video, we will discuss about what are water pumps, its classification, construction and working of reciprocating and centrifugal pump and much more. So let's start. What are water pumps? A water pump is a device which lifts the water from lower level and discharges it to higher level at the expense of mechanical energy. Thus, the pump is a power absorbing device and is used to increase the pressure of the liquid. There are hydraulic machines which converts mechanical energy into hydraulic energy. Pump energy is utilized for lifting purpose or for increasing the pressure. Pumps are driven by some prime movers, which can be an IC engine, steam engines, or an electric motor. Classification of pump. Pump can be broadly classified as positive displacement and rotor dynamic or dynamic pressure pump. In a positive displacement pump, a small quantity of liquid is taken inside the pump and it is broadly forced out under the pressure. These are reciprocating type, gear pump and screw pumps. In a rotor dynamic or dynamic pressure pump, the liquid is subjected to whirling motion by an impeller and kinetic energy is converted to pressure energy inside the pumps. अब बात करते हैं reciprocating pump की. In reciprocating pump, the piston reciprocate inside the cylinder to suck the water in one stroke and exert the thrust on liquid during return stroke and thus increases the pressure energy of the liquid. तो हमने देख रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के जो डायग्राम्स है उसमें रेसिप्रोकेट पिस्टन के जो है सिलेंडर के अंदर मूव करता है, जो कि 2 स्ट्रोक में करता है. फ्रंट पे जाएगा और रिटर्न आएगा, 1 स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक. तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर प्लंजर का भी यूज करते हैं. जो पिस्टन है, पिस्टन की जगह प्लंजर पंप भी यूज किया जाता है. Construction of reciprocating pump. A reciprocating pump consists of a piston or plunger having a reciprocating motion inside a cylinder with the help of a connecting rod and crank. The cylinder is connected to the sump by the suction pipe and to reservoir by the delivery pipe. At the bottom end of the suction pipe, a strainer and a foot valve are fitted. There are 2 more valves, suction and delivery valves, located near the suction and delivery side of the pumps. Working of reciprocating pump. When crank starts rotating from 0 to 180 degree, the piston moves outward. It creates vacuum inside the cylinder. The suction valve opens. The atmosphere pressure acting on the surface of the water in the sump forces the water to enter the cylinder through the suction pipe and continue to enter the cylinder till the piston reach outermost position. When the crank rotates from 180 to 360 degree, the piston moves inwards in the cylinder. At first the suction valve closes and then water pressure opens the delivery valve and water is pushed upward in the delivery pipe and delivered to the reservoir. The height difference between water in sump and pump center line is called the suction head, HS, and the vertical distance between the center line of the pump and the delivery pipe is called the delivery head, HD. Thus, a quantity of water is lifted through a static head. Capital H is equal to small hs plus HD during one revolution of crank. अब रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात कर रहे हैं हम. रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर डायग्राम में समझेंगे कि किस तरीके से जो रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है. तो ये हम सबसे पहले देखें कि ये सिलेंडर दिखाया गया है. जिस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन को हम देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, और ये जो पिस्टन है इसकी जो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा कनेक्ट है, जो कि क्रैंक से जुड़ा हुआ है. जब क्रैंक को यहाँ पर रोटेशन दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी वर्किंग में समझा कि वो 0 से 180 डिग्री जाता है, तो पिस्टन मूव करता है एक साइड में, और जब वो 180 टू 360 डिग्री आता है तो पिस्टन मूव करता है बैक साइड में. तो इन दोनों जब आगे जाता है और पीछे आता है पिस्टन, तो उस दोनों के दौरान में जो सम्प के द्वारा जो कि वाटर से फिल है, वो ऊपर सक्शन पाइप के द्वारा ऊपर की तरफ खींचता है, इंटर करता है वाटर,
जो सिलेंडर के अंदर, और जब वो आगे की तरफ स्ट्रोक लगाता है तो ये सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है, और जब डिलीवरी वाल्व ओपन होता है तो जिसके द्वारा जो वाटर है डिलीवरी पाइप के द्वारा वो रिजर्वायर के अंदर फिल होता जाता है, रिजर्वायर के अंदर स्टोर हो जाता है। अभी हमने देखा था ये HD और HS समझाया था कि ये जो हेड है ये सक्शन हेड है, ये यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी हेड है, और इन दोनों को देखेंगे तो टोटल करेंगे तो कैपिटल H आ जाएगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पंप को हमने समझा। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप्स है वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में सिर्फ एक बार पानी आता है पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा, लेकिन डबल एक्टिंग पंप के अंदर, डबल एक्टिंग पंप में आप देखेंगे कि दो सक्शन पाइप होते हैं और दो डिलीवरी पाइप होते हैं। दो डिलीवरी पाइप के द्वारा जब वो एक स्ट्रोक जाता है तब भी पानी आता है, जब वो वापस आता है तब भी पानी उसके अंदर डिलीवर होता है। इस तरीके से डबल एक्टिंग में वो हर स्ट्रोक के अंदर पानी को सक भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। तो हमने देखा कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो वर्किंग को समझा डायग्राम के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए रोटर डायनेमिक मशीन इन विच लिक्विड फ्लो रेडिली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एंड हेंस द लिक्विड गेट्स प्रेशर हेड बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ द रोटेटिंग इम्पेलर। Actually, in principle, the centrifugal pump is the converse of the Francis turbine. Construction of working और प्राइमिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल। अब हम इसकी बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट रोटर कॉल्ड एज इम्पेलर, सेकेंड केसिंग और थर्ड सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स। इसकी वर्किंग की बात करें, एज इम्पेलर रोटेट्स ए पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड एट सेंटर ऑफ इम्पेलर आई and the water is sucked into impeller eye through the suction pipe. The sucked water is forced out of rotating vanes and is thus discharged with increased pressure and velocity in the casing. The diffuser blades convert the kinetic energy of water into pressure head and thus water is discharged with greater pressure. तो हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो वाटर है उसका प्रेशर बढ़ता है और वो उसके द्वारा आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, डिलीवर होता है। अब प्राइमिंग की बात करें यदि सेंट्रीफ्यूगल में हम कि प्राइमिंग किस तरीके से की जाती है, तो इट इज इन ऑपरेशन इन विच द सक्शन पाइप causing a pump and a piston of the deliver pipe is filled up from outside source of water before starting the pump to remove air from these parts of the pump। मतलब उसमें हमको एयर को रिमूव करना होता है और उसके अंदर वाटर को फिल करना होता है फर्स्ट टाइम, जिससे कि वो प्राइमिंग ऑपरेशन कहलाता है। अब हम इसके सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग को समझेंगे डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप को यहाँ दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले समझेंगे सक्शन पाइप है, दूसरा ये डिलीवरी पाइप दिया हुआ है, ये यहाँ पर अपन देखेंगे ये इम्पेलर दिया हुआ है जिसके अंदर ये बाहर साइड में केसिंग दी हुई है, ये आई बोला जाता है। तो हम जब बात करते हैं वर्किंग में तो इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से रोटेट होता है और यहाँ पर जो वाटर को सक करता है, यहाँ पर दिया हुआ है जो थंब के द्वारा जो वाटर को सक करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा वो आगे की तरफ उसको डिलीवर करता है, जिससे कि उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो जो कि ओवरहेड टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। इसमें हम देखें HS और SD यहाँ पर शो किए गए हैं, जो कि हमने आपको पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर भी समझाए थे। तो इस तरीके से यदि हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप भी इसी तरीके से वर्क करता है, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है रोटेट करता है, इसमें आई दी हुई है, इम्पेलर है, केसिंग है, जो कि हम इस डायग्राम के अंदर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।